مثال اکثر دیا کرتا ہوں، امیتابھ بچن کا بیٹا ہے ابھیشیک بچن. امیتابھ بچن سے بڑا ایکٹر پیدا نہیں ہوا ہندوستان میں. انڈسٹری ہے، یونیورسٹی ہے، لیکن اس کے بچے کو وہ مقام کیوں نہیں ملا؟ اس کے پاس میں نالج ہے، امیتابھ کے پاس میں پیسہ ہے، انفلوئنس ہے، ریسورسز ہے، کیا نہیں ہے یہ بتائیں مجھے، لیکن وہ بچہ وہاں تک نہیں پہنچ پایا. سنیل گواسکر کیسا زبردست کرکٹر انڈیا کا، اس کا بیٹا روہن گواسکر دیکھ لیں، کوئی پہچانتا نہیں اس کو. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. ہم سب کے دلوں کی دھڑکن محترم جناب منور زماں، ایک ساتھ کہیے اہلا و سہلا و مرحبا، اہلا و سہلا و مرحبا. یہاں آ کر مجھے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے، وہ اس لیے کہ اس جگہ بسنا ہم جیسے لوگوں کے لیے نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. آپ لوگ یہاں صرف اپنی زندگی بسر ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ادارے بھی چلا رہے ہیں، ماشاءاللہ مدرسہ بھی چل رہا ہے، اسکول بھی چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات مجھے ابھی پتہ چلی کچھ دیر پہلے کہ یہیں سے پڑھے ہوئے کچھ طلبہ ماشاءاللہ KS ایگزام لکھ کر کامیابی حاصل کیے ہیں. یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، آسان نہیں ہے. شہر کے بڑے بڑے کالجز میں لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور یہ جو امتحان ہوتے ہیں نا اسٹیٹ والے، سول سروسز ایگزامز، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ کشمیریوں میں نے یہ غضب کا جذبہ دیکھا ہے ماشاءاللہ. یہ جب ٹھان لیتے ہیں تو پا لیتے ہیں. اور آپ لوگ کے علم میں ایک چیز میں لے آنا چاہتا ہوں، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، ریسورسز نہیں ہوتے ہیں، امیدیں ختم ہو جاتی ہے، لوگ کوئی بھی نظر نہیں آتے مدد کرنے کے لیے، وہیں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور وہیں سے ریولوشن پیدا ہوتا ہے. اور جہاں ساری فیسلٹیز ملتی ہیں آپ وہاں ان کے زندگیوں میں جا کر دیکھیں، وہ لوگ کچھ بڑا اپنے زندگی میں پا نہیں رہے ہوتے ہیں. جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ارادہ ہوتا ہے وہ لوگ منزل تک بہت آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. میں نے 3 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو پڑھایا ہے، لیکچر دیا. ایسا نہیں ہے، ایسے تو نہ جانے کتنے لوگوں کو لیکچر دیا میں نے. پڑھانے کا مطلب باقاعدہ 1 مہینہ یا 40 دن پڑھایا ہے 3 لاکھ نوجوانوں کو. اور میں نوجوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں آپ میں سے آدھے سے زائد اپنے قسمت پر ہوتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے والد نے اچھی تعلیم نہیں دی ہے، مجھے اچھے اسکول میں میری تعلیم نہیں ہوئے، گورنمنٹ اسکول میں نے پڑھائی کی ہے. جو ایسے قسمت میں رونے والے ہیں وہ ایک دفعہ ڈاکٹر APJ کلام صاحب کی زندگی میں جھانکے. وہ بھی تو ایسے ہی چھوٹے اسکول میں تعلیم حاصل کیے تھے، وہ بھی گھروں میں جا کر نیوز پیپر ڈالا کرتے تھے. اس وقت میں کوئی حکومت، نہ چنئی کی حکومت، نہ کوئی انڈین گورنمنٹ اس وقت میں ڈاکٹر APJ کلام صاحب کے پاس جا کر یہ نہیں کہا کہ بیٹا یہ عمر نیوز پیپر ڈالنے کی نہیں ہے، یہ عمر کتاب پکڑنے کی ہے، یہ عمر پڑھائی حاصل کرنے کی ہے، تعلیم حاصل کرنے ہے. آپ نے کسی نے ان کے پاس جا کر ایسا موٹیویٹ نہیں کیا. وہ چنگاری ان کے پاس میں تھی، وہ توپ بن کر ماشاءاللہ پورے دنیا میں کیسے پھیلے ہیں، ویسا پریزیڈنٹ پورے ورلڈ میں شاید آج تک پیدا نہیں ہوا. آپ کی سمپلسٹی، آپ کا ویژن، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا کیریکٹر. کبھی کینٹین میں 2 سالن بن کر آ جاتے، ہمارے یہاں دسترخوان پہ 4 سالنے اگر آ جائیں تو ہم تو دبا کے بیٹنگ کر لیتے ہیں.
डॉक्टर एपीजे कलाम साहब के दस्तरखान पर कभी 2 सालने आते तो पूछते कि क्या कोई त्योहार चल रहा है भारत में, ये 2 सालने क्यों है, सालन एक ही रखे। हजरत उमर की सुन्नत, शोरबे में गोश्त भी होता तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने 2 सालने माना करते थे उसको। हम तो एक ही सालन मानते हैं उसको, एक तो शोरबा होता है ग्रेवी और उसमें गोश्त होता है, उसे भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने 2 सालने माना करते थे, कभी 2 सालन नहीं खाते थे। वैसा मेहनत करके डॉक्टर एपीजे कलाम साहब ने कैसी बुलंदियों को छुआ है माशाअल्लाह। आप तमाम नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि भले आप लोग इस पसमानदा ऐसी गुर्बत ज़दा जगहों पर अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं या अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाने के लिए आया हूं, आप लोग बड़े अनमोल हैं, आप लोग प्राइसलेस हैं, आपका कोई प्राइस नहीं लगा सकता दुनिया में। आज जो लोग काम कर रहे हैं ना 10,000, 15,000, 20,000, इसके लिए कतन हम लोग पैदा नहीं हुए, हम लोग 15,000 बनाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम लोग लोगों की खिदमत करने के लिए पैदा हुए। भले उसमें किसी को पैसा ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, ये अलग सूरत है, लेकिन इंसानियत को हमने बनाने के लिए यहाँ पर दुनिया में इंसानों को अल्लाह ने भेजा है, इंसाफ करने के लिए भेजा है। और मैं नौजवानों को जब मैं अपील करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, उन्हें बताता हूँ, आपके पास अगर कुछ नहीं है आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारे। अगर आपके पास में इरादा है और मेहनत करने का जज्बा है तो आप कूड़े में भी पैदा हुए ना तो आप कल को जाकर हीरा बन सकते हैं इंशाअल्लाह। सिर्फ आपके पास में वो इरादा होना चाहिए और वो अज़्म आप में पैदा होना चाहिए कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है किसी भी हाल। लेकिन एक ऐसी बीमारी नौजवानों में आई हुई है और वो जैसे कैंसर इंसान को खा जाती है ना, वैसे कई बीमारियां इंसान को आज उनके करियर को तबाह कर रही है। जैसे हार्ट अटैक एक बीमारी है, ब्लड प्रेशर एक बीमारी है, वो इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। बिल्कुल उसी तरह डायबिटीज जो शुगर की बीमारी होती है, शक्कर की, वो भी इंसान के हड्डियों को भी गुला देती है। तो ऐसे कई बीमारियां हैं जो इंसान को मार देती है, खत्म कर देती है। बिल्कुल उसी तरह करियर को खत्म करने की कई बीमारियां हैं जो आज हम नहीं जानते। ये नौजवानों के हाथ में जितने फोन है जो आज मुझे वीडियो ले रहे हैं, ये कैंसर के से कम नहीं है, बिलीव मी, कैंसर से कम नहीं है। ये आपके करियर को पूरा तबाह कर देते हैं। एक वक्त था गुनाह करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, वालिदैन से छुपकर, मोहल्ले वालों से छुपकर, गांव वालों से छुपकर, बुजुर्गों से छुपकर, उलमाओं से छुपकर, न जाने कहां कोनों में जाकर गुनाह करना पड़ता था। आज गुनाह करने के लिए इंसान को पहल करने की जरूरत नहीं है, अपने ही कमरे में बैठकर गुनाह किए जा रहे हैं। और ऐसा जिना वो आंखों का जो जिना कर रहे हैं, उसके बाद करोड़ सजदे कर लें आप, वो सजदे अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल सजदे नहीं है। सजदे काबिल कबूल कब होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। आप सब लोग नमाजें पढ़ते हैं, नमाजों में सजदे होते हैं और हमारी 5 वक्त की नमाज रोज कबूल होती है नहीं होती है ये तो बेहतर अल्लाह जानता है, लेकिन कल्ब, दिल को भी कुछ पता चलता है ना कि मेरी दुआ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरी नमाज कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है। आप पता कर सकते हैं कि मेरी नमाज में कितना इखलास है। अगर आपने 24 घंटे में एक भी झूठ नहीं बोला है, किसी को भी धोखा नहीं दिया है, अपनी आंखों का जिना नहीं किया है, तो समझना कि आपकी नमाजों में वो इखलास पैदा हो रहा है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजर में आप एक बहुत ही खास मुसलमान बंदे बनकर उभर रहे हैं। आज हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं तो वो भी तादाद 2%, 5% रह गई है। 95% तो अल्लाह की आवाजें जो मीनारों से गूंजती हैं, दे टर्न डेफ ईयर टू द कॉल्स ऑफ सक्सेस। कामयाबी की पुकार, कामयाबी के लिए दावतें दी जाती है रोजाना 5 वक्त, लेकिन आज 99% नौजवान बच्चे सुनकर भी अनसुनी करते हैं। अब जो बच्चे 1% पढ़ रहे हैं उनमें भी इखलास नहीं रहा। इखलास क्यों नहीं रहा? वो झूठ भी बोल रहे हैं, वो धोखा भी दे रहे हैं, वो गाली भी दे रहे हैं, वो वालिदैन को उफ भी कह रहे हैं, फिर सुबह फजर के बाद यासीन पढ़कर बाहर से निकलते हैं और फिर वालिदैन के साथ उनका रवैया कैसा है। आपकी नमाज अगर अच्छी होनी है तो याद रखें, आप गुनाहों से बचना बेहद जरूरी है।
ये गुनाहों से बचे इंशाअल्लाह। आप ऐसे जल्दी तरक्की करते जाएंगे। और मैं वापस मेरी टॉपिक पर आऊँगा ताकि भूल ना जाऊँ। मैं कह रहा था कि ऐसे पहाड़ी इलाके में, पसमंदा और गुर्बत ज़दा ऐसे इलाके में आप लोग माशाअल्लाह स्कूल चला रहे हैं। जिम्मेदारान को मैं सलाम करता हूँ, बिलखुसूस अलहाज जो यहाँ के बानी हैं गुलाम खादर साहब माशाअल्लाह गनीपुरी, मैं सल्यूट करता हूं आपके विजन को। ये आसान नहीं था। आज से 40 साल पहले आपने एक फिक्र की है तो आज यहाँ हजारों लोग जमा हुए माशाअल्लाह। एक बंदा खड़ा हुआ था 40 साल पहले, आज हजारों लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और कई सारे हुफ़ाज़ इकराम यहाँ से निकल रहे हैं, उलमाए दीन यहाँ से निकल रहे हैं और इंग्लिश मीडियम की तालीम आप लोग हासिल कर रहे हैं और कोई केस भी पास कर रहे हैं माशाअल्लाह। आने वाले जमाने में इंशाअल्लाह देखना, मेरी इन बातों को अपनी किताबों में लिख कर रखना। इन्हीं पहाड़ी इलाकों से इंशाअल्लाह ऐसा रेवोल्यूशन आएगा, यहाँ से डॉक्टर्स पैदा होंगे, यहाँ से इंजीनियर्स पैदा होंगे, यहाँ से IAS IPS ऑफिसर्स पैदा होंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि इरादा बहुत जरूरी है। आपने एक दफा इरादा कर लिया तो मंजिल बहुत आसान है। उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है, उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। मैं मिसाल अक्सर दिया करता हूँ। अमिताभ बच्चन का बेटा है अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन से बड़ा एक्टर पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में। इंडस्ट्री है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके बच्चे को वो मकाम क्यों नहीं मिला? उसके पास में नॉलेज है, अमिताभ के पास में पैसा है, इन्फ्लुएंस है, रिसोर्सेज है, क्या नहीं है ये बताएं मुझे, लेकिन वो बच्चा वहां तक नहीं पहुंच पाया। सुनील गावस्कर कैसा जबरदस्त क्रिकेटर इंडिया का, उसका बेटा रोहन गावस्कर देख ले, कोई पहचानता नहीं उसको। आप देखें ऐसी जगह से महेंद्र सिंह धोनी आया, कोई नहीं जानते थे उसको, आज कैसा कैप्टन बनकर उभर रहा है। वालिदैन अगर रिसोर्सफुल है, इन्फ्लुएंशियल है, वेल्दी है, जरूरी नहीं कि आप वो वेल्थ, वो इन्फ्लुएंस से आपको कामयाबी मिले। कामयाबी के लिए अंदर चिंगारी होना बहुत जरूरी है। ये चिंगारी के बिना मंजिल कभी नहीं मिलने वाली है आपको। आप इरादा बनाएं, इंशाल्लाह ये ऐसा वक्त से गुजर रहे हो आप जवानी का, इसमें जो आप चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि डायरेक्शन बहुत जरूरी है। यहाँ कोई बंदा खड़े होकर मुझे बताए कि किसी के 17 फ्रैक्चर्स हुए हैं, 17 फ्रैक्चर्स हुए हैं, 7 सर्जरीज हुए हैं। एक लड़की की मैं कहानी आपके इल्म में ले आना चाहता हूँ। राजस्थान सब लोग जानते हैं, रेती इलाका, रेत का रेगिस्तान, वहाँ एक छोटे से गांव में एक लड़की के 17 फ्रैक्चर्स हुए। वो कभी गिरती तो हड्डी टूट जाती, हड्डी में जो बोन मैरो गुद होता ना वो बिल्कुल पतला। ऐसे कई लोग हैं जो कभी गफलत से भी गिरते हैं तो हड्डी टूट जाती है। हम गिरते हैं तो हड्डी नहीं टूटती क्योंकि हड्डी में गुद है, अल्लाह ने वो पावर दिया है। उस लड़की के 17 फ्रैक्चर्स हुए हैं, 7 सर्जरीज हुए हैं और हाइट उसकी बेचारी की इतनी, जो बोनी कहते हैं ना उर्दू में, सुना आपने? जो बौना होता है, बोनी होती है इंग्लिश में, उसको ड्वार्फ कहते हैं, DWARF। बिल्कुल छोटे सर्कस में आप लोग देते हैं, छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटे पैर होते हैं। तो वो उसकी बहनें भाई सब खानदान में वैसे ही थे। तो शौहर उसका बाप वो छोड़कर बीवी बच्चों को दिल्ली आ गया। तो माँ परेशान, बच्चे परेशान, क्योंकि सब बीमारियों में मुलविस है। तो जो शौहर ने छोड़कर, यानी अपनी बेटी को छोड़कर बाप दिल्ली आ गया, तो बात सुने आप लोग बड़े गौर से। माँ ने कहा बेटे से कि बेटा तूने बेसहारा छोड़कर मुझे, तेरी बीवी और तेरे बच्चों को छोड़कर तू दिल्ली चला गया और किसी से शादी कर ली तूने। खैर कोई बात नहीं, कम से कम ये 3-4 जो तेरे बच्चे हैं उनमें से एक बच्ची बहुत पढ़ना चाहती है, वो बच्ची को तू जरूर दिल्ली बुला और एजुकेशन दे। तो माँ होती है, माँ की बात उस बंदे ने सुनी और उस बच्ची को राजस्थान के छोटे गांव से दिल्ली बुलाकर स्कूल में दाखिला दिलवाया, गवर्नमेंट स्कूल में। पैसे वैसे तो नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल में वो लड़की पढ़ाई करती थी और इतने अच्छे नंबरात से पास होती थी तो उसके सौतीली माँ को बड़ा जलन सा होता था। और उसकी भी एक बेटी थी जिसको स्टेप सिस्टर कहते हैं, हम उम्र। वो बच्ची अच्छे नंबरात से कामयाब नहीं होती, लेकिन ये जो कम खत की लड़की जो राजस्थान के गांव से आई, ये बड़े अच्छे नंबरात से कामयाब होती थी।
اب یہ دیکھ کر کو اسے اتنا جلن حسد پیدا ہوا ہے کہ یہ لڑکی بہت آگے جا رہی ہے، میں ایسا ختم نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے ایک شرط لگایا، الیکٹریسٹی کی بل بہت آ رہی ہے، 7 بجے کے بعد یہاں گھر میں کوئی لائٹ فین نہیں چلے گا، تو وہ لائٹ بند کرنا شروع کر دی تاکہ یہ پڑھائی نہ کرے۔ دیکھیں، جس میں جرت ہوتی ہے، جس میں ارادہ ہوتا ہے، جس میں عزم ہوتا ہے، وہ اپنے مشن کو کبھی چھوڑتے نہیں۔ تو وہ بندی کیا کری، صبح 3 بجے جا کر پڑھنا شروع کی ہے، باہر جا کر گھر کے صحن میں بیٹھ کر پڑھائی کرنا شروع کی، اور اچھے نمبرات آنے لگے اس کو۔ اب یہ دیکھا نہیں گیا اس کو، اب ظلم کرنا شروع کیا، اب اتنا ظلم کرنا شروع کیا کہ اس کے پاس میں کوئی آپشن نہیں تھا، یا تو وہ ظلم سہے یا پھر واپس راجستھان چھوٹے گاؤں چلے آئے۔ وہ بہت سوچ کر ایک قدم اٹھایا، اور وہ قدم نہ راجستھان کی طرف گیا اور نہ ہی وہ اس گھر میں رہ کر اس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر وہ ایک سلم میں جا کر، یمنا وہار دلی میں ہے، وہ سلم میں جا کر پڑھائی، اپنی تعلیم، اپنا ایجوکیشن اس نے شروع کیا، اور وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر وہ اپنی اسکول کی فی وغیرہ دیا کرتی تھی، یا اور مزید کتابیں خریدنا، پڑھائی کرنا۔ اور آپ لوگ کے علم میں یہ بات لے آنا چاہتا ہوں، بہت غور سے سنیں۔ وہ ٹیوشن اس کی فی ہوتی تھی 10 روپے، کوئی 15 روپے، کوئی 20 روپے دیتا تھا۔ مہینہ اس کی کمائی ہوتی تھی 200 روپے۔ وہ 200 روپے میں وہ پورا مہینہ گزارنا ہوتا تھا اس کو، اور وہ 200 روپے میں وہ اسکول جانا، کالج جانا، پھر 6 گھنٹے ٹیوشن پڑھانا بچوں کو۔ اور وہ اپنے ایک انٹرویو میں اس نے بتایا کہ روٹی ہوتی نا، وہ روٹی 3-4 دن کی روٹی بنا لیتی بیک وقت میں، اور پانی میں ڈبو کر کے وہ روٹی کھاتی تاکہ سالن بنانے میں وقت ضائع نہ ہو۔ تو روٹی کو پانی میں ڈبو کر، بھگو کر، صبح میں بھگویا، رات میں آ کر وہ روٹی کھا کر بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر وہ 10th کلیئر کیا، 12th کلیئر کیا، پھر اس نے گریجویشن کلیئر کیا۔ اور کسی نے اس لڑکی سے کہا کہ حیدرآباد سے کوئی مشہور ٹرینر دلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ کنڈکٹ کرتے ہیں، یہ پبلک سپیکنگ سکھاتے ہیں، یہ کانفیڈنس ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہ ارادے ڈیولپ کرتے ہیں لوگوں میں، آپ ضرور اٹینڈ کریں۔ تو وہ لڑکی آئی بیچاری پروگرام اٹینڈ کرنے کے لیے، 20 دن گزر گئے، اس لڑکی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ سٹیج پر آئے بات کرے۔ ایک دن میں نے خوب زبردست موٹیویشنل لیکچر دیا، تو وہ لڑکی نے ہمت جوڑ کر 300 نوجوان بچے یونیورسٹیز کے تھے وہاں، دہلی یونیورسٹی، جامعہ اسلامیہ سے سب بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمت جوڑ کر بالکل کونے سے آ کر اسٹیج کے درمیان بیچ میں آ گئی اور مائک لے کر کھڑی ہوئی۔ 1 منٹ تک اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تو مجھے بڑا درد ہوا ہے، لوگ 350 جو بچے بیٹھے ہوئے تھے، 300 کے 300 بچے اس کی چال کو دیکھ کر، اس کے خط کو دیکھ کر ہنس رہے تھے، اور وہ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تو مجھے ڈر لگا کہیں یہ لڑکی دل پہ تو نہ لے لی۔ سب لڑکیاں لڑکے ہنس رہے تھے اس پر۔ 1 منٹ کے بعد اس نے مائک خرید کیا، اور 300 جو بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اس لڑکی نے کہا، You can laugh. You all are my friends. You all are my classmates. You can laugh. آپ سب لوگ میرے کلاسمیٹس ہیں، آپ لوگ ہنس سکتے ہیں، جتنا ہنسنا چاہیں اتنا ہنس سکتے ہیں۔ I have no issues. I have no problem at all. مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے، آپ لوگ ہنسیں اگر مجھ پر، جتنا ہنسنا چاہیں آپ ہنس لیں۔ آپ لوگ صرف 300 لوگ ہیں، اور ٹریننگ کے 20 دن بچے ہیں، آپ اگر چاہ بھی لیں تو مجھ پر اور مزید 20 دن ہنس سکتے ہیں۔ But I do not want the rest of the world to laugh at me for the rest of my life. اس نے کہا میں نہیں چاہتی کہ پوری زندگی لوگ، پوری دنیا والے مجھ پر ہنستے رہیں۔ یہ جو 300 لوگ 20 دن مجھ پر ہنسیں گے میں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن زندگی بھر پورے دنیا والے مجھ پر اگر ہنستے رہیں یہ قطعاً میں برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اب یہ سوچ رکھنے والی لڑکی کیا کیا کر سکتی ہے آپ سوچیں۔ وہاں ورکشاپ ہوا ہے، اس کانوکیشن میں
5 बड़े बड़े पर्सनालिटीज आए थे, उसमें 3 तो चीफ मिनिस्टर थे। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह साहब थे, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे, और स्पीकर थे पार्लियामेंट के रहमान साहब, डिप्टी स्पीकर, और मजीद बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स, एमिनेंट पर्सनालिटीज गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर आए थे। तो बेहतरीन अंग्रेजी में सबने स्पीचेस दी थी। तो वो फारूक अब्दुल्ला साहब, दिग्विजय सिंह साहब, वो लोग को मैंने जजेस बनाया था। हाथ में पैड देकर आप मार्क्स देते रहिए, वरना आप लोग यहाँ भी आकर फोन पर ही मशगूल रहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप मेरे बच्चों की स्पीचेस सुने। अब जब मार्क्स देना होता तो सुनना जरूरी होता है ना, तो बड़ा दिल से सुन रहे थे सब लोग। तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने पूरे स्पीचेस होने के बाद कहा कि आप लोग 6 बड़े अच्छे स्पीचेस दिए, हो सकता है आप लोग तैयारी करके आए। मैं कुछ टॉपिक दूंगा, आपने अभी बात करना है 1 मिनट बिना तैयारी के। तो उन्होंने सबको अलग अलग टॉपिक दिए। वो जब लड़की की बारी आई तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आप इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए कि बिरयानी कैसे बनती है, बताइए। तो वो लड़की हंसते हुए फारूक अब्दुल्ला साहब के आंख में आंख मिलाकर कहा कि सर जी, काश आप मुझे दाल रोटी कैसे बनता पूछते ना, तो straight away I'll give you the demonstration. I've never had biryani, asking me to give demonstration how to cook biryani. दाल रोटी कैसे बनती पूछिए, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकती हूँ। बिरयानी हम कभी खाए नहीं, हम कैसे डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। वो बेस्ट स्पीकर अवार्ड लेकर गई है। उसके बाद वो कोरिया 2 दफा, हैंडीकैप इंडिया के जितने भी होते हैं उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो लोग की ट्रेनिंग होती है। कोरिया को इंडिया से 2 दफा उस लड़के ने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद जापान में 1 साल की ट्रेनिंग, लीडरशिप की ट्रेनिंग लेने उस लड़की गई है और वापस आई है, आकर एक इम्तिहान लिखने की जरूरत की है। उस इम्तिहान का नाम है यूपीएससी। 2016 में पहला अटेम्प्ट किया, तो पहले ही अटेम्प्ट में वो क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बनी माशाअल्लाह। आप देखिए कैसी कहानी उसकी, कैसी गुर्बतज़दा जिंदगी उसकी, कैसे मुसीबतों से अपनी जिंदगी को काटा। ना वालिद का सपोर्ट, ना माँ का सपोर्ट, ना रिसोर्सेस, ना कोई मोटिवेशन। जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, उनको कोई हरा नहीं सकता। सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, दे डू वंडर्स इन लाइफ। जिनमें सेल्फ मोटिवेशन, किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं कि कोई बंदा आए और आपको मोटिवेट करे। अब वो तो 50-50 हो जाता है, लेकिन याद रखें जो चिंगारी अंदर से है, जो बंदा खुद करना चाहता है, उसको फिर कोई रोक नहीं सकते। इसीलिए आप लोग से गुजारिश, कश्मीर में बहुत से नौजवान बच्चे आईएएस और आईपीएस एग्जाम लिखना चाहते हैं। ये कोई टफ एग्जाम नहीं होता है, इसकी तैयारी करना है और डिसिप्लिन से तैयारी करना है। हाँ जी, सुने सब लोग। मैं जिस शहर से आता हूँ वो शहर का नाम है हैदराबाद। आपने सुना है? हैदराबाद पब्लिक स्कूल एक मशहूर स्कूल है। वहाँ से एक बंदा तालीम हासिल किया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में अपना ग्रेजुएशन वगैरह करके आज अमेरिका में है। उसकी सैलरी सालाना 400 करोड़ है। कितनी? सालाना 400 करोड़। अब 400 करोड़ सालाना बना रहे हैं वो। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट जानते हैं? माइक्रोसॉफ्ट, हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है सत्या नडेला। और गूगल जानते हैं आप लोग? हाँ, गूगल, ये भी तमिलनाडु का बंदा है, चेन्नई का, सुंदर पिचाई। सालाना 800 करोड़ रुपए कमाता है। कितने? 800 करोड़। ये बॉलीवुड के हीरोज नहीं बना सकते। वो सिर्फ इल्म हासिल किया, इकरा, इल्म हासिल करना।
टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आप लोग सिर्फ IAS के पीछे ना जाएं, IT के कोर्सेज भी करें। आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं अपने ज़िंदगी में। और IIM कोर्स होता है, वो ग्रेजुएशन के बाद में एक इम्तिहान होता है। कितने लोग जानते हैं CAT कैट? कोई सुन रखा आप लोगों ने? CAT कैट एक इम्तिहान है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जो भी क्वालिफाई कर बैठते हैं उनका एडमिशन बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में होता है, जो अहमदाबाद में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, बड़े मशहूर हैं। वहाँ आपका एडमिशन अगर होता है, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज आकर पहले ही दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं कि भाई 2 साल के बाद आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले, और ये 2 साल आपको हम हर महीना स्कॉलरशिप देते रहेंगे, आप कहीं नहीं जाना। आप देखिए कैसा डिमांड होता है। और वहाँ जो भी बंदा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA कर लेता है, वहाँ पर जो भी बंदा IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ जो भी ग्रेजुएशन कर लेता है, और करना मतलब दिलचस्पी के साथ में, पूरे जज्बे के साथ में, और करने के बाद उसको एक पेन और पेपर आप हाथ में थमा दीजिए। वो 100 करोड़ का बिजनेस कैसे करना, कितने एम्प्लॉयज आपको चाहिए, कैसे स्ट्रेटजीज बनाने होते हैं, वो आपको ऐसे ही बना के दे देगा। जहन ऐसा खुल जाएगा इंसान का। अल्लाह ने एक ऐसा ज़बरदस्त तोहफा दिया है, और हम लोग आज तक उसकी कीमत नहीं लगा पाए। हर चीज़ की कीमत है। अगर किसी के पास में आईफोन है तो वो बड़ा प्राउड फील करता है कि मेरे पास में आईफोन है, क्योंकि उसकी कीमत 2 लाख रुपए है। तो अल्लाह ने जो दिमाग दिया है, इसका कोई प्राइस कभी लगाया आपने? ये जो दिमाग है, करोड़ों रुपए फीके हैं इसके आगे, करोड़ों रुपए फीके हैं। अल्लाह ने जो उंगलियां दिया है, जो हाथ अल्लाह ने दिए हैं, प्राइसलेस है ये चीज़ें। हम आज तक समझ नहीं पाए। हाथों का इस्तेमाल किसी ने, सचिन तेंदुलकर ने कुछ अंदाज से किया, डॉक्टर APJ कलाम ने कुछ अंदाज से किया, सुंदर पिचाई ने कुछ अंदाज से किया। तो वो लोग अपने अपने फील्ड के माहिर बन गए हैं, और हम लोग अपनी ज़िंदगी कैसी गुजार रहे हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ 3 वक्त खाकर ज़िंदगी 20, 25 या 40, 50 या 60 साल जीने के लिए नहीं आए। आप वो काम करें जो सदियां आपको याद रखें। आप एम्बेसडर बन जाएं ह्यूमैनिटी के, और वो कब होगा? जब आपके हाथ देने वाले होंगे, सैलरी लेने वाले नहीं, सैलरी देने वाले हाथ हो जाएंगे। आप यहाँ पर इंशाअल्लाह वो तमाम चीज़ें यहीं से कर सकते हैं। और यहाँ जो शुरुआत हुई है, मुझे बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि ऐसी जगह भी इतनी हिम्मत रखने वाले लोग हैं आप लोग के साथ में। लेकिन याद रखें, जो सुस्ती बच्चों में आज हो रही है, ये भी बड़ी खतरनाक बीमारी है, ड्रग्स में इन्वॉल्व है। मेरे पास में कुछ ऐसे नौजवान बच्चे आ रहे हैं जो 3-3 दिन बेहोश पड़े रहते हैं, 3-3 दिन। उसके वालिद सर्किल इंस्पेक्टर है, कर्नाटका से हैं। मेरे पास एडमिशन हुआ है, बाद में काउंसलिंग करने के बाद पता चल रहा है कि वो लड़का कुछ ऐसा ड्रग्स लेता है, कोई स्नेक बाइट है, सांप जबान पर बाइट करता है, 72 घंटे बंदे बेहोश हो जाते हैं। 72 घंटे। मैंने पूछा, आप बेहोश रहे ये बात समझ में आई, लेकिन आपके वालिदैन क्यों बेहोश पड़े हैं? वो नहीं पूछते आपको कि आप कहाँ हैं, कि नहीं हम एक्सकर्शन के नाम से निकल जाते हैं। भले चलो एक्सकर्शन के नाम से ही निकले हैं, लेकिन ये फ़ोन का ज़माना है, आप फ़ोन तो कर सकते हैं, वीडियो कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन वालिदैन भी मस्त मगन अपनी ज़िंदगी में है। तरबियत करना किसी को नहीं पता चल रहा है। आज के ज़माने में 2 बड़े चैलेंजेस हैं, एक ईमान की हिफाजत करना, और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो बच्चों की तरबियत करना। ये 2 चीज़ों में 99% लोग फेल हो चुके हैं। ईमान की हिफाजत नहीं कर पा रहे, बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रहे। और जब बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते ना, तो 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद देखना कौम में ऐसी बिगाड़ और ऐसे खतरनाक मुजरिम पैदा हो जाएंगे, कौमों में से कुछ भी नहीं रहेगा, एक दूसरे को नोच कर खाने की नौबत आ जाएगी जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता है। इसीलिए अल्लाह ने
इंसानों को तोहफा दिया है कुरान की शक्ल में। जब जब दुनिया में बिगाड़ आया है उस वक्त में अल्लाह ने प्रॉफिट्स को भेजा है इस दुनिया में ताकि अमन बना रहे, इंसानियत बनी रहे। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कमो पेश प्रॉफिट्स को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस ज़मीन पर भेजा है। जब जब बिगाड़ आता अल्लाह ने कोई ना कोई एक प्रॉफिट को इस ज़मीन पर उतारा है। और ज़मीन पर क्यों उतारा है? अमन कायम करने के लिए, इंसाफ कायम करने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए अल्लाह ने प्रॉफिट्स को भेजा है। और प्रॉफिट मोहम्मद इज़ द लास्ट मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। क़यामत बिल्कुल करीब होते जा रही है। तमाम गुनाह जब हो जाते हैं तो फिर क़यामत बर्पा हो जाती है। मैं समझता हूँ कि कोई गुनाह बचा ही नहीं अभी, इतने गुनाह हो रहे हैं। बिल्कुल क़यामत के करीब हम लोग हैं और कोई प्रॉफिट आने वाला है नहीं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला नबूवत के दरवाज़ों को रोक दिया है, लेकिन अच्छे लोग को ज़रूर भेज रहा है। जैसे यहाँ एक बेहतरीन पर्सनैलिटी माशाअल्लाह अलहाज गनीपुरी साहब जो खादर साहब के खिदमत है, ऐसे हर गांव में, हर शहर में, हर देश में अच्छे लोग को अल्लाह सुब्हानहू तआला भेजता है ताकि वो लोग मेहनत करें लोगों में और सही रास्ता दिखाए। तो यहाँ पर जो भी असातिज़ा जुड़कर स्कूल में काम कर रहे हैं, सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लब्बैक कह के आप लोग की भी जिम्मेदारी है उस इदारे को मजबूत करने की। इदारे आसानी से नहीं बनते हैं, एक घर बनाने के लिए ज़िंदगी लग जाती है और इदारा बनाना तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब जब इदारा बनना है फिर इदारे को चलाना है, उसके कई अखराजात होते हैं और ये जिम्मेदारी होती है आप लोगों की भी और जितने मालदार हैं वो लोगों की भी कि इन इदारों में आए, उनसे मिलें, बात करें, मोटिवेट करें। तभी जाकर के ये जो नौजवान बच्चे, मैं आ रहा था, छोटे छोटे नौजवान बच्चे, उनसे भी छोटे छोटे, इतने भी नन्हे नन्हे बच्चियाँ स्कूल से आ रही हैं माशाल्लाह, पहाड़ों से उतरते हुए। तबीयत इतनी खुश हुई। यही हमारे कल के लीडर्स बनने वाले हैं, यही चमकने वाले हैं। इनको अगर हमने सही तालीम नहीं दी है तो आने वाला मुस्तकबिल बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। हमने बचाना है। और अल्लाह ने इस दुनिया को जब सजाया है, जब बनाया है, ये चांद तारे, आसमान, पहाड़, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने बनाए ना। अब बनाने के बाद चलाना भी तो है अल्लाह को। तो चलाने के लिए अल्लाह ने दो चीज़ों को चुना है, एक प्रॉफिट और दूसरा कुरान। प्रॉफिट को भेजे और फिर प्रॉफिट के साथ कुरान को भेजे है। अगर हमारे हाथ टीचर का हाथ पकड़ ले, अब तो कोई प्रॉफिट नहीं है, तो फिर प्रॉफिट की बातें जो बताने वाले उलमा हजरात हैं, टीचर्स हैं, उनका हाथ थाम लें। एक हाथ टीचर्स का हाथ पकड़ लें और आपका और एक हाथ बुक्स थाम लें, तो फिर आप कल के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं इंशाअल्लाह। आप कल के डॉक्टर APJ कलाम साहब हैं, आप कल के सत्य नडेला बनेंगे, आप कल के सुंदर पिचाई बनेंगे इंशाअल्लाह। आप कल के IAS IPS ऑफिसर्स बनेंगे। आपके एक हाथ में टीचर का हाथ हो और एक हाथ में किताबें हो। लेकिन आज नौजवानों के बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, उनमें से मैक्सिमम मैं देखता हूँ एक हाथ में मोबाइल होता है और एक हाथ में सिगरेट होता है। अब बताएं मुझे, जो नौजवान लड़का एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में सिगरेट लेकर अपने घर से बाहर निकलता है, वो क्या कौम में तब्दीली ले आ सकता है? रेवोल्यूशन ले आ सकता है? वो इंसानियत का एम्बेसडर बन सकता है? वो खतन नहीं बन सकता है। इन चीज़ों को फेंकना है आपने। ये चीज़ें आपके मुस्तकबिल को बिगाड़ने वाली चीज़ें हैं। मोबाइल इंसान के सलाहियत को ख़त्म कर दे रहा है। जैसे किसी का हाथ नहीं है उसको अपाहिज बोलते हैं, किसी का पैर नहीं है उसको अपाहिज कहते हैं, किसी के आँख नहीं है वो अपाहिज है। लेकिन मुनव्वर ज़मा के नज़दीक ऐसा भी एक अपाहिज है जो अल्लाह ने ज़हन, ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है ना, लेकिन इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है इंसान। वो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा अपाहिज इंसान है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अशरफ बनाया है ना, तो ये ज़हन की वजह से, ये ब्रेन की वजह से। वरना इस दुनिया में कई जानवर हैं जो हमसे तेज़ भागते हैं, हमसे बेहतरीन लड़ सकते हैं। आप देखें समंदर में ऐसे कई मछलियां हैं जो हमसे बेहतर तैरती हैं।
इस जमीन पर हमसे तेज दौड़ने वाले कई जानवर हैं, इस जमीन पर हमसे लंबे हाइट में कई जानवर हैं, लेकिन अल्लाह ने किसी को अशरफ नहीं कहा। अशरफ अल्लाह ने हमें बनाया है। क्या देखकर? हमारे जहन को अल्लाह ने ऐसा जहन दिया है, ये वंडर्स कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक चीज याद रखें, ये जहन को अगर आप इस्तेमाल करना छोड़ दें तो इसको जंग लग जाएगा। अब लोहे को जब जंग लग जाता है तो लोहा कोई काम का नहीं होता है। पानी अगर ठहरा हुआ है और वो पानी बह नहीं रहा है तो वो पानी में जो फ्रेशनेस है वो फ्रेशनेस चला जाता है, प्यूरिटी चली जाती है, उससे आप वजू भी नहीं बना सकते। बहते पानी से आप वजू बना सकते हैं, बहते पानी से आप गुस्ल कर सकते हैं। इसीलिए इंसान को चलने आना चाहिए, दौड़ने आना चाहिए, मेहनत करने आना चाहिए। 8-8, 10-10 घंटे मोबाइल लेकर मोबाइल में ही चैटिंग करते हुए आज नौजवान बच्चे घरों में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने करियर को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अपने आने वाली पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। आपसे जुड़ी जो भी नस्ल आने वाली है ना, वो पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ आपके करियर पर असर नहीं होने वाला है, आने वाले नस्ल पर असर होने वाला है। मैं जब 28 साल का था, मुझे डू और डस का फर्क नहीं मालूम था। वहां से मैंने मेरे करियर को शुरू किया, फार्मेसी कोर्स किया था, जॉब मैंने छोड़ दी। वालिद मेरे नाराज, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ते हैं, लेकिन मुझ में जुनून था कि 3.5 साल लगे मुझे अंग्रेजी सीखने में, और मैं ऐसे ही छोड़ दूं अंग्रेजी को और गवर्नमेंट जॉब कर लूं। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, और गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद हैदराबाद शहर आकर मैं स्कूल्स में मेरा रिज्यूमे दिया कि इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ। मुनव्वर जमा के लिए सारे स्कूल्स के दरवाजे बंद थे, क्योंकि मेरे पास में बीएड सर्टिफिकेट नहीं थी, मेरे पास में कोई एमएड सर्टिफिकेट नहीं थी।